Good evening, students. So, yesterday I have discussed about the valence bond theory, and according to that, I have explained some question in which some students face some problem, and they have told to explain that how we will find the paramagnetic nature of NiCO whole 4. NiCO whole 4. What will be the hybridization shape and magnetic nature of this complex? Actually, Ni has atomic number 28. So what will be the electronic configuration? Ar 3d8 4s2. This is the ground state. If you find the oxidation number of Ni, so you will get 0, and in case of 0 oxidation state, that means no electron will be lost from the Ni. So excited state will be same, Ni Ar 3d8 4s2. If you will draw the diagram of excited state of Ni nickel, so you will see Ar 3d8 4s2 and 4p vacant. On filling the electrons according to the Hund's rule, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 2. As you know, this CO carbonyl is a strong field ligand, और strong field ligand में students क्या होगा? The opposite of, that means against of the Hund's rule will takes place here. Electrons will be back to the d orbital. ये s के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ जाएंगे? d ऑर्बिटल्स में वापस जाएंगे, बिकॉज CO इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड. और आपको बता दूं कि ये CO जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन है. सो ड्यू टू CO strong field agent, Ar and this D 3d10 will be 4s vacant, 4s 0 and 4p vacant. What will be happen? These two electrons of s will back to the d orbitals, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि सेंट्रल एटम प्रोवाइड द वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीजेंड्स. There are 4 legend here. You are seeing 4 vacant orbitals are here. So this is SPPP. That's mean sp3 hybridization will be here. sp3 CO legend अपने पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करेंगे. 1 2 1 2 1 2 1 2, and you are seeing there is no unpaired electron here. That's mean it is a diamagnetic in nature. sp3 hybridization, and shape will be tetrahedral. So student write here sp3 hybridization, shape tetrahedral, 0 unpaired electron, low spin complex, and diamagnetic in nature. Magnetic in nature. And how you will draw the structure? This is Ni, like this, CO, 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 and CO.
I think you have understood about this. This is a special case of NiCO whole 4. So student, you should not any type of problem to do. Next question. Okay students, you have understood about the valence bond theory and examples of valence bond theory. On the basis of valence bond theory VBT, you can identify the hybridization, shape, magnetic nature, but some drawbacks you have feel in the valence bond theory. पहली ड्रॉबैक्स आप देख रहे होंगे कि जब ये बोला गया कि एंटी हुन्स रूल को फॉलो कीजिए, तो एंटी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके फिलअप करना शुरू करते हैं, लेकिन जब कॉपर साइन टेट्रा साइनो वाले कॉम्प्लेक्स की बारे में बात हुई तो इलेक्ट्रॉन को बैक साइड में आने के बजाय लास्ट में पी में ले जाया गया और बोला गया कि ऐसे कर लेना चाहिए, पीछे जगह नहीं। क्यों कर लेना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब ड्रॉबैक थी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स के कलर या कलरलेस होने का भी कंफर्मेशन नहीं कर पाती। सो उसके लिए हमें एक और दूसरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारी प्रॉब्लम्स को जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। और लेकिन ये कंपैरेटिवली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हुए टफ़ है। इसके जो पास्टुलेट हैं किस तरह से हैं, पहला पास्ट जैसा कि आप जानते हो, लीजेंड्स आर निगेटिवली आर न्यूट्रल चार्ज्ड विच कैन डोनेट एट लीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। डियर स्टूडेंट्स, लीजेंड पे चाहे चार्ज हो या ना हो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के लीजेंड अगर न्यूट्रल भी है तो भी वो अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसी को, रिपल्सन करेगा ही, क्योंकि निगेटिव चार्ज होना है। और जब लीजेंड किसी ऑर्बिटल पे पहुंचता है, चाहे वो वैकेंट ऑर्बिटल्स हो या उसमें इलेक्ट्रॉन हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हो, तो लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन लगता है। लीजेंड बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज and it carry a net negative charge. Number third postulate of the crystal field theory, when legend approaches to the orbital, so repulsion takes place. जब legend orbital में पहुंचता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहुंचता है किसी भी ऑर्बिटल में, तो उसमें रिपल्सन होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और लीजेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, क्योंकि लीजेंड की डिफिनेशन बोलती है लीजेंड इज़ अ न्यूट्रल और चार्ज स्पेसीज विच कैन डोनेट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लीजेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन या वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में एक रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल्स दूर हटते हैं। लेकिन कहाँ तक दूर हट पाएंगे, एक टर्म्स होते हैं कि वहीं तक ही उसकी एनर्जी पहुँच सकती है और फिर वो ऑर्बिटल्स टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब यहाँ पे 5d ऑर्बिटल्स हैं, हम 5d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लीजेंड इन पे अटैक करते हैं। जब लीजेंड इन पे पहुँचता है तो पहले तो ये रिपल्सन होता है इसमें और ये 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कुछ इंक्रीज़ कर जाती है। तो हम इनको थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर की तरफ बना देते हैं, ड्रा करते हैं। सी हियर, दैट्स मीन द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल विल बी इंक्रीज्ड। लेकिन इसके बाद भी लीजेंड वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर आप देखेंगे कि अब एनर्जी बढ़ नहीं सकती है। तो लीजेंड जिस सारे ऑर्बिटल्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ज़्यादा रिपल्सन लगता है और किसी में कम रिपल्सन लगता है। इस तरह से ये डी के 5 ऑर्बिटल्स, डी के ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DZS square, DX square minus Y square. These 5d orbitals split into 2 groups. One group contains 3 orbitals while other group contain 2 orbitals. Suppose 3 orbitals, 2 groups, 1 group and second group.
जब ये स्प्लिटिंग होती है यानी कि ये 5 ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लीजेंट आ रहा है और इन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह से रिपल्सन लग रहा है। जिनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा लगता है वो ऑर्बिटल दूर हो जाते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या कम रिपल्सन होता है उनकी एनर्जी कुछ डिक्रीज़ कर जाती है। कुल मिलाकर के 5 ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब 5 को 2.5 तो नहीं किया जा सकता, इसलिए एक साइड में 3 जाते हैं और एक साइड में 2 जाते हैं। जो आपका 3 का ग्रुप है उसको हम T2G ग्रुप बोलते हैं, T2G ग्रुप, और जिसमें 2 ऑर्बिटल्स जाते हैं उनको हम EG ग्रुप बोलते हैं। ये स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीजेंड्स होती है और ऑर्बिटल्स उसी के अकॉर्डिंग स्प्लिट करते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो रहा है तो T2G ग्रुप नीचे की तरफ आता है और दैट्स मीन 3 ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ आते हैं। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो उसमें 2 ग्रुप्स नीचे आते हैं और 3 ग्रुप्स ऊपर जाते हैं। दिस इज T2G ग्रुप while this is EG ग्रुप। EG ग्रुप्स में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, while in T2G group there will be 3 d orbitals dxy, dyz, dzx. So in case of strong field legend electrons की filling इन orbitals में होती है। अगर हम strong field legend कोई आ रहा है और octahedral complex है, that means 6 legend हैं और हमें उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है 5 में, तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स को नीचे वाले ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी पे ही फिलअप करेंगे। सो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G5 EG0। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG configuration T2G5 EG0. It is most important. While in case of weak field legend, suppose any weak field legend is coming and it is a octahedral complexes, then configuration of D5, what will be? 1 electron in each orbital, that's mean T2G3 and EG2. फिर से समझिए, अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे की तरफ फिलिंग पहले होगी, पहले जब तक इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे तभी ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G5 EG0। लेकिन अगर वीक फील्ड लीजेंड है तो इलेक्ट्रॉन सब में 1 1 1 और फिर यहाँ पर भी 1 1 होंगे, तो T2G3 एंड EG2। और हम कैसे जानेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है या वीक फील्ड लीजेंड है, या हम आपको लीजेंड्स के बारे में पहले बता चुके हैं, और आप अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो उस वीडियो को आप देखें। एक और कंडीशन है, अगर हम लिखते हैं डेल ऑक्टाहाइड्रल ग्रेटर दैन P, दैट्स मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड का केस है, और अगर डेल ऑक्टाहाइड्रल लेस दैन P लिखते हैं दैट्स मीन इट इज़ अ वीक फील्ड लीजेंड का केस है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ D5 D4 व्हेन del octahedral less than P. One more question for you, D6 del octahedral greater than P. You have to write the electronic configuration of D4 and D6 in terms of T2G and EG configuration. Okay, if splitting is in terms of tetrahedral, so this group, that means EG group will come downside and T2G group will go upside. But writing the configuration of tetrahedral complexes, we have to use only T2 not G and E not G. अगर हम tetrahedral का configuration लिखेंगे तो E और T2 लिखा जाएगा, G नहीं लिखा जाएगा, और tetrahedral में पहले E आएगा, E group फिर T2 group. Okay student, it is sufficient for today. Good night.